हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एनटीएससी के उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा एनटीएससी के जो क्वेश्चंस हैं वही डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी कैन सी हियर, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमें गिवन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देख सकते हो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में गिवन है और टाइम इन सेकंड गिवन है। और इसका ग्राफ, ये ग्राफ है, ये तो लेबलिंग दिया गया हमें, नीचे वाला जो लाइंस दिया वो लेबलिंग के लिए। नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो हम लोग को नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का तो चांस नहीं है क्योंकि एरिया जो है पॉजिटिव है स्टूडेंट्स। एरिया जब ग्राफ निगेटिव होता, वेलोसिटी निगेटिव होता तो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ आता। जैसे अगर इस तरह का ग्राफ होता, जैसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर इस तरह से होता तो यहाँ पर वेलोसिटी निगेटिव हो रहा है, यहाँ से वेलोसिटी बढ़ा, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर जीरो हो गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निगेटिव हो गया मतलब पीछे आ रहा है। ऊपर वाला एरिया जो होता है, हमें ऊपर वाला जो एरिया ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर फिर से वेलोसिटी जीरो होने के बाद वेलोसिटी निगेटिव हो गया मतलब वापस आ रहा है। तो ये ऊपर वाला जो डिस्टेंस है ये एरिया देगा हमें, A1 वाला एरिया। और नीचे जो वापस आ रहा है ये एरिया जो है A2, ये एरिया हमें देगा कि कितना पीछे आया। तो डिस्प्लेसमेंट तो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, देन वी कैन सब्ट्रैक्ट A2 माइनस A1। बट हेयर एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी जीरो हेयर। फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। Total displacement travel is 80 minutes. You can calculate area. We know that displacement versus velocity versus time graph area gives displacement. Here area will be half into base. Base is 4 and height is 20 meter. 20 meter per second means it will be 40 meter. Displacement will be 40 meter. Positive 40 meter means along positive direction, means second option is not possible. Acceleration of the particle is constant. Acceleration of the particle is not constant because we know that the velocity versus time graph slope gives acceleration. Here acceleration is positive. In this graph we can see here theta is, it's making this theta is greater than 90 degree, means slope is negative. Or we can also say velocity is decreasing means acceleration is negative. Here velocity is increasing, acceleration is positive. Acceleration is positive and negative, and plus minus sign denote direction. If direction will change, acceleration will change. If direction will change, acceleration is change because acceleration is a vector quantity. So we can say that acceleration is not constant, means only D is possible. Because here we can see velocity is always positive. Here velocity is increasing, velocity is, it's a positive. Here velocity is decreasing but it's above y-axis. Here you can see here velocity is plus 10, here velocity is plus 20, here velocity is plus 15, here velocity is plus 1, plus 2, like that. Means velocity is never negative. If graph will go down, then velocity will be negative. Means we can say velocity is always positive, means it's moving toward positive x-axis. Positive axis means velocity is, direction is constant. Velocity direction is constant. We can't say velocity is constant because magnitude is changing, but direction is constant because it's always positive. Okay, then answer will be D. Next question is, a students start with initial velocity 40 km per hour for a school at 4 km away from the house. Due to closing of, he is returned to the house with velocity 60 km. The average velocity यहाँ पर जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल राजस्थान एनटीएससी में पूछा। यहाँ पर यहाँ से यहाँ गया, ए पोजीशन से बी पोजीशन पर गया, मतलब स्कूल गया और फिर रिटर्न बैक हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो निगेटिव हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो सॉरी जीरो हो गया। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, बिकॉज इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज जीरो। द एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम. Total displacement is zero. But if someone will ask you what is average speed, then you can apply this formula 2v1 v2 divided by v1 plus v2 for average speed 2 into velocity is given 40, initial velocity 40, v2 you can take anyone, you can take v1 v2 60 divided by v1 plus v2 100. It will become 0 0 will get cancelled, it will become 24 48 kilometer per hour.
average speed will be 48 kilometer. Here another option is given 48 km, but this is not option answer. Here they have asked average velocity, means this is the if they will ask you what is average speed, then you can say 48 kilometer is the correct answer. Okay, or you can do like this, you can assume this distance as x and this distance is also x, because both distances are equals, and you can apply air speed is suppose v1, it's traveling with v1 speed means 40 kilometer per hour, 40 kilometer per hour, and here speed is given v2 is equals to returning with a speed 60 kilometer per hour, 60 kilometer per hour. Then you can apply this formula, total displacement divided by total time, total distance divided by total time, average speed is equals to total distance divided by total time. Total distance will be 2x divided by this total time. Total time is this distance is given x and the speed is given 40, means you can calculate time. Time is equals to distance divided by speed, means x divided by 40, and time of returning will be t2, that is equals to distance is x and the speed is 60 kilometer per hour, means here you can write x by 40 plus x by 60, and you can common x and you will get same answer. If you will common x will get cancel and it will become 2 divided by 1 by 40 plus 1 by 60. If you will take LCM, then you will get this value, exactly this value. This is the correct answer, means 48 answer if they will ask you for average speed, but here they have asked for average velocity. Now next question is, a boy sitting on the top of the berth of the compartment train who is just going to a stop or railway station, drop apple, is aiming to open his hand, brother situated vertically below is at the distance about 2 meter, apple will fall. अब यहाँ पर देखो सिचुएशन कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स, मान लो कि ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है ना, एक नीचे सीट रहता है, यहाँ पर एक पर्सन उसका मान लो कि ब्रदर बैठा हुआ है, यहाँ पर एक एप्पल लिया है और तुम यहाँ इस सीट पर बैठे हो, इस सीट पर मान लो कि तुम यहाँ बैठे हो, है ना, तो अपना हैंड यहाँ पर, तो अगर ये एप्पल गिराएगा, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहता, मान लो कि ट्रेन कुछ भी स्पीड से चल रहा है, मान लो कि 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, स्पीड सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर एट दिस टाइम, सपोज एट एनी इंस्टेंट, सपोज स्पीड इज 100 किलोमीटर, तो ये पर्सन का स्पीड कितना है, ग्राउंड वाले पर्सन के लिए, जो ग्राउंड पर बैठा है उस पर्सन को कितना दिखाई देगा इसका स्पीड, इसका स्पीड कितना दिखाई देगा 100 किलोमीटर, तो इसके हैंड में एप्पल जो है वो भी 100 किलोमीटर पर और के स्पीड से चल रहा होगा, क्योंकि इस पर्सन को दिखाई देगा, इसके लिए तो ये रेस्ट में है, क्योंकि दोनों ये भी 100 किलोमीटर पर आवर के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो अगर ये इसको देखेगा तो बोलेगा कि पहले भी सामने था अब भी मेरे सामने ही है, तुम्हारा पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, योर वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है और इसके हैंड के भी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ट्रेन चलते रहता तो उसके हैंड में एग्जैक्टली गिरता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये वेलोसिटी सेम रहता, एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी सेम रहता, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी किसके वजह से, ग्रेविटी के वजह से बढ़ता, से ग्रेविटी के वजह से वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में इंक्रीज करता, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो दोनों का ही सेम रहता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है ना, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता तो मतलब नेट फोर्स 0 है। लेकिन अब सोचो ट्रेन रिटार्ड कर रहा है, मतलब इसका स्पीड घट रहा है, इसका मान लो 80 मीटर, मतलब 1 सेकंड में ये 80 मीटर ही चला, अब रिटार्ड हो रहा है, प्लेटफॉर्म पर रुकने वाला तो रिटार्ड हो रहा है, ये डिस्टेंस कवर किया कितना 80 मीटर 1 सेकंड में, लेकिन ये तो अब एयर में आ चुका है ना यार, एयर में आ चुका तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो 100 किलोमीटर रहेगा ही रहेगा, और ग्रेविटी के वजह से वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी की वजह से इंक्रीज होगा, तो 100 मीटर पर सेकंड अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है तो ये ना रिड्यूस होगा, एयर रेजिस्टेंस को हम लोग निगलेक्ट करते हैं, तो 100 इस डायरेक्शन में रहेगा ही रहेगा, ये ऐसे जाता रहेगा 100 1 सेकंड में, मतलब यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये 100 मीटर आगे चला जाएगा। हाँ, स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट बढ़ जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 100 ही रहेगा, 1 सेकंड में ये यहाँ पर चला जाएगा, है ना। तो ये जब एप्पल यहाँ गया तो ये एप्पल जो है ये इस तरह से गिरेगा यहाँ पर, मतलब यहाँ भी 100 इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 100 है, स्पीड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में,
तो ये एप्पल जाके गिरेगा आगे, रिटार्ड हो रहा हो, क्योंकि ये पर्सन जो है इसका स्पीड डिक्रीज होगा। लेकिन यही 100 से चल रहा होता ट्रेन, तो ये भी 100 आगे चला जाता और ये भी 100, इसका हैंड भी 100 चला जाता और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता। तो दोनों केस में उसके हैंड में गिर जाता एप्पल। ऐसा होता भी है, हम लोग अगर कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रेन चल रहा है तो एप्पल फेंकोगे तो आपके हैंड में ही आ जाएगा। लेकिन आप ट्राई करना, जब ट्रेन रुक रहा होगा, सडनली कोई ब्रेक लगा दे, उसके बाद तुम आप फेंकोगे तो एप्पल तुम्हारे हाथ में नहीं गिरेगा, वो क्या हो जाएगा, आपके आगे जाके गिर जाएगा एप्पल, है ना। क्योंकि उसका वेलोसिटी जो था, आपका जो हैंड का वेलोसिटी था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उतना ही वेलोसिटी उस एप्पल का भी होगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी ग्रेविटी के वजह से चेंज होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एयर में जब आ गया तो उसकी वेलोसिटी को घटाने बढ़ाने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप जो ट्रेन से कनेक्टेड हो, आप ट्रेन पर बैठे हो, तो आपका स्पीड, अगर ट्रेन रिटार्ड होगा तो आपका स्पीड भी रिटार्ड होगा। ये तो एप्पल एयर में आ गया था, तो इसकी वेलोसिटी तो डिक्रीज होने वाली नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 100 ही रहेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ता रहेगा, ठीक है। दो कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा हमारा, स्लाइटली अवे फ्रॉम द हिज हैंड ब्रदर इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगर एक्सेलरेट होते रहता तो वो पीछे गिरता, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती। अगर एक्सेलरेट हो रहा होता ट्रेन तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती, 100 दोनों का था, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती और एप्पल तो एयर में आ जाता। एप्पल एयर में आ गया, उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ाने वाला 100 था तो 100 ही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो ये आगे चला जाएगा इसका हैंड, और एप्पल पीछे रह जाएगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो, ट्रेन के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a body falling from rest under gravity and rebounding from the surface of the solid represented by। अब देख, यहाँ पर जो भी एनटीएससी का क्वेश्चन पूछता है ना, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के ग्राफ ड्रॉ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मान के ग्राफ ड्रॉ करता है। तो यहाँ पर अगर एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है स्टूडेंट्स, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा सर, तो यहाँ पर, यहाँ से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मान लिया, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मान लिया। अच्छा सर, तो आपने सर ऊपर क्यों नहीं माना, क्योंकि ऐसा जो जितने भी एनटीएससी का क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान के ग्राफ ड्रॉ किया गया था। आप जितने देखोगे मोस्टली ऐसा ही होता है ना, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान, डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान लिया, तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन वेलोसिटी भी पॉजिटिव रहेगा। जब वो नीचे आ रहा होगा, ग्राउंड को हिट करने से पहले इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। v = u + at, मतलब u तो 0 ही है, gt हो जाएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, नीचे वाई एक्सिस है इसलिए। तो यहाँ पर इस ग्राफ में वेलोसिटी निगेटिव हो जा रहा है, इस ग्राफ में वेलोसिटी, ये तो टाइम के पीछे चला गया, तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम तो निगेटिव पॉसिबल ही नहीं है ना। यहाँ पर वेलोसिटी निगेटिव है, लेकिन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान के ग्राफ ड्रॉ किया, इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसमें भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद, अब देखो, जैसे ही इसको हिट करेगा, मान लो ये 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव था, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, वेलोसिटी इसका -20 मीटर पर सेकेंड। अगर इलास्टिक कोलिजन, मतलब जितना स्पीड से टकराए उतना स्पीड से जाएगा तो ऐसा होता है, लेकिन जनरली हमारा इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। तो मान लो कि ये 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे था, जैसे ही टकराया तो ये प्लस ऊपर के डायरेक्शन में ये 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। टकराने के बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो ऊपर डायरेक्शन में, जस्ट उसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी निगेटिव हो गया, क्योंकि ये तो निगेटिव वाई एक्सिस है ना, ये निगेटिव वाई एक्सिस है, और प्लस माइनस साइन डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग, प्लस माइनस साइन यहाँ डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, निगेटिव हो गया इसी इंस्टेंट पर। पहले पॉजिटिव था और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर देखो, इस ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव था और उसी इंस्टेंट पर, जस्ट उसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निगेटिव हो गया, और दोनों ही केस में स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। और यहाँ आप देख सकते हो कि दोनों ही केस में
एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो पॉजिटिव रहना ही चाहिए। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निगेटिव भी है, और यहाँ दो तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ स्लोप से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और यहाँ डायरेक्शन भी देख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन तुरंत निगेटिव हो रहा है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद। लेकिन इस केस में तो वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, देखो यहाँ पर वेलोसिटी +20 था, +15 है, +10 है, +5 +0, तो वेलोसिटी उसमें तो निगेटिव हुआ ही नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी निगेटिव है, तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट शोन इन द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको गिवन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी रहता है तब भी हमारा वेलोसिटी बढ़ता है। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। और वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है इसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है, इस केस में वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसमें भी वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसमें भी वेलोसिटी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रहा था, तेज़ी से बढ़ रहा था यहाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ते जा रहा था। मान लो कि पहले 1 सेकंड में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ा, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ेगी, अगले 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू घट रहा है, मतलब 1 सेकंड में पहले एक्सेलरेशन मान लो 20 मीटर पर सेकंड बढ़ा, तो अगले 1 सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। मतलब वेलोसिटी तो बढ़ ही रहा है, अभी भी वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी अभी भी बढ़ ही रहा है। बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, यार एक्सेलरेशन निगेटिव नहीं है, यहाँ पर एक्सेलरेशन अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये ग्राफ नीचे नहीं गया है टाइम एक्सिस के। अगर ग्राफ नीचे जाता तो वेलोसिटी हमारा यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ तो ऊपर है, मतलब एक्सेलरेशन अभी भी पॉजिटिव ही है, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा। हाँ, पहले ज़्यादा स्पीड से हर 1 सेकंड में बढ़ रहा था, अब कम कम स्पीड से बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर। तो देखो इस केस में, किसी भी केस में वेलोसिटी जो है, इसमें वेलोसिटी इनिशियली तेज़ी से बढ़ना चाहिए, तो इस केस में वेलोसिटी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके बाद वेलोसिटी कम धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये केस पॉसिबल है। ये तो बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसमें क्या है, शुरू में वेलोसिटी जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, बाद में तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाद में एक्सेलरेशन का वैल्यू घट रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन घट रहा है, मतलब वेलोसिटी। और यहाँ पर तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, और यहाँ पर स्लोप देखो निगेटिव हो गया है, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, जबकि एक्सेलरेशन तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। और हमेशा वेलोसिटी बढ़ ही रहा है, इसमें तो वेलोसिटी घट के 0 हो गया, इसमें वेलोसिटी 0 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कभी निगेटिव हुआ ही नहीं। एक्सेलरेशन निगेटिव होता, पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता, बाद में एक्सेलरेशन निगेटिव होता, तो वेलोसिटी 0 होकर फिर बहुत देर तक 0 होने के बाद भी अगर पीछे की तरफ एक्सेलरेशन होता, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन होता, तो फिर वो निगेटिव वेलोसिटी, लेकिन कहीं भी वेलोसिटी निगेटिव हो ही, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा ही पॉजिटिव है। तो आंसर जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में और एनटीएससी के प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे।